This is a story that sits at the intersection of India's edtech boom and the capital markets. PhysicsWallah was launched in 2016 as a YouTube channel by educator Alak Pandey, preparing students for competitive exams such as JEE and NEET. In 4 years, it evolved into a full-blown edtech company with co-founder Prateek Maheshwari. In the next 4 years, it had scaled into a unicorn, valued at about $2.8 billion. And this week, it plunged into the public markets with an IPO worth 3,480 crore rupees. But despite the buzz, the response has been muted. Day 2 subscriptions of the IPO were hovering between 9 to 13%, and grey market premiums signaled a listing around just 1 to 2% above the issue price. A few days before the IPO launch, ET's startups editor Samita Sharma and Tanishka Dubey caught up with Alak and Prateek for a chat on its markets debut, its hyper-growth phase, piling losses, limitations, and expansion plans. Listen on, it's Thursday, the 13th of November. I'm Anirban Chaudhary. This is The Morning Brief. So tell me, how has the IPO process been so far? So, investors took it very positively because they treated us as a consumer internet company whose 93% learner base is currently online and it's a pure platform play. If we look at your financials, your revenue has spiked quite a bit in just the past 2 years. From FY23 to 25, the revenue was 4x. 97% CAGR in revenue, 90% CAGR in EBITDA. But your losses have inched up quite a bit, right? And when you look at that number, that is something that, is also becoming very important for public markets, especially with internet companies. So is that some sort of a, concern? नहीं, ऐसा कंसर्न नहीं है क्योंकि आप इसको EBITDA लेवल पे देखोगे तो आपको EBITDA तो ग्रो करता हुआ दिखेगा। FY24 से 25 का आपको देखोगे तो आपको बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा EBITDA लेवल पे। तो विथ इंक्रीजिंग रेवेन्यू मेरा EBITDA परसेंटेज भी इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इसको अगर अकाउंट को स्टैंड हटा के अगर मैं इसको कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ तो FY24 मैंने जनरेट किया था कुछ 210 करोड़ के आसपास और FY25 के अंदर कुछ 500 करोड़ जनरेट किए मैंने कैश फॉर ऑपरेशन। इसको तीसरी तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितना फंड उठाया, तो हमने 5 साल के अंदर कुछ 210 मिलियन प्राइमरी फंड उठाया कंपनी के अंदर। टोटल 2 राउंड ही हुए कंपनी के, पहला यूनिकॉर्न पे हो गया था, दूसरा ये वाला 2.8। और अभी हम लोग की ट्रेजरी जो बैलेंस है वो नियरली 300 मिलियन की है। सो दिस स्पीक्स अ लॉट हियर, कंपनी इज कैश रिच, जनरेटिंग कैश एवरी ईयर। Is there any guidance or what we can expect in terms of tapering off your losses as you inch towards your IPO? So very soon. So you need to understand the nature of the business. Whenever you start a new exam categories, first year goes into building distribution, teaching for free on YouTube. That investment goes in online also. As well as offline, first year the center profitability, doesn't come. It comes in second year. The break-even point is second year, and third year is the year where it starts जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कैश। पहले ऑनलाइन को पकड़ते हैं। तो ऑनलाइन के अंदर जो कैटेगरीज हमने 2020 में स्टार्ट की थी, सबसे पहले वाली हमारी IIT नीट की, उनके मार्जिन्स बहुत हाई हैं क्योंकि वो मैच्योर हो गई, क्योंकि वहाँ की कॉस्ट तो आपकी ऑलरेडी बिल्ड, देखिए हमारी कॉस्ट पहले बिल्ड हो जाती है ऑनलाइन में। टीचर आ गए, स्मार्ट बोर्ड आ गया, कैमरा आ गया, डन। अब कॉस्ट बढ़नी नहीं है, हर बच्चे के साथ मेरी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है। सर वो कॉस्ट बहुत छोटी होती है, नेगोशिएशन हम बहुत अच्छा कर पाते हैं, हमारे पास वॉल्यूम इतना होता है। तो जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज करते हैं इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत इंप्रूव होते हैं। तो JEE नीट अपने बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन पे है जहाँ बाकी कैटेगरीज पहुंचेगी। How big is that business? 52% of the revenue. अब आती है ऑनलाइन के अंदर न्यूअर कैटेगरीज जो हमने स्टार्ट कर दी। UPSC किया हमने, CA किया हमने, MBA किया, डिफेंस किया, करते गए। ये जो कैटेगरीज है ये 2023 के आसपास से स्टार्ट हुई। तो 3 फोर्सेस, आप रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हो, आप EBITDA इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हो। वी टुक अ कॉन्शियस कॉल कि नहीं, हमें रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस करना है बिकॉज वी वांटेड टू कैप्चर
maximum market share, as well as not compromising the student experience. That is why we took company into hyper growth in past 2 years. सेकंड पार्ट है हमारी न्यू कैटेगरीज. उनके पास कम्युनिटी बिल्ड करने का वो टाइम नहीं था जो मैंने दिया था यूट्यूब. And which were your new categories? UPSC. UPSC, GATE, CA, Commerce, CAT, 38 एग्जाम कैटेगरीज में. इसमें हम घुसे. हाँ, और उसके बाद उस पर हमने स्पेंड किया, उसकी कम्युनिटीज बनाई. अब उसमें से बहुत सारी कैटेगरीज के मार्जिन भी जेईई के पास पहुंचने लगते हैं. तो जैसे जैसे हम नई कैटेगरी लॉन्च करते हैं 2-3 साल में उनके कैटेगरी में. तीसरी चीज है ऑफलाइन. ऑफलाइन इज वेरी कंपाउंडिंग. तो ऑफलाइन के अंदर हमने हैवी इन्वेस्टमेंट किए. हमारा ऑनलाइन कैश जनरेटिंग था, हम वहां से ऑफलाइन में पैसे ले गए. लास्ट 2 इयर्स के अंदर हमने 170 सेंटर्स खोले. फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफलाइन ब्रांड बन गए हैं मीडिया के. और नेक्स्ट 3 years में 200 more centers will go. At this point of time, with 300 centers, and that will go to 500. 3 years. So offline our centers takes close to 24 months to make a break even. तो वहां से कंपाउंडिंग स्टोरी है. जैसे जैसे हमारे सेंटर्स पुराने होते जा रहे हैं उनके मार्जिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ न्यू सेंटर्स एडेड कंपेयर टू द नंबर ऑफ सेंटर्स ओपन का रेशियो जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे भी प्रॉफिट की तरफ जा रहा है. So largely the losses on the back of your offline expansion, is that? Yeah, that is for last year, yes. So quota phenomenon was a huge concern for online education apps. उसको disrupt करने के लिए आपकी क्या strategy थी? So हमने क्या strategy अपनाई कि हम चले गए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के छोटे शहरों में भी सेंटर खोलना स्टार्ट किया. हमारी स्ट्रेटजी यही थी. यही बच्चा कोटा जाता था, पॉपुलेशन बनाता था. तो ये बच्चा अब कोटा ना जाके अपने अपने शहरों में पढ़ने लग गया. इसकी वजह से प्रोटेक्ट प्राइस भी कम पड़ता है, हॉस्टल में नहीं गया, स्ट्रेस भी नहीं है, घर का खाना मिलता है. तो हमारी वजह से कोटा ओवरऑल डिसरप्ट हुआ. ये सच है, हमारा कोटा सेंटर भी बड़ा था तो वे भी ऑफ कोर्स डिसरप्ट हुआ. दैट वाज अ कॉन्शियस कॉल फॉर अस. We don't want to create mega centers like Kota. We want to go as near as students are available. तो हमारा ओवरऑल कोटा के अंदर ही 40-50% बच्चा डिक्लाइन हुआ एंड ये सेम रेशियोज के अंदर हमारे एडमिशंस भी. पर हमारे पूरे ऑफलाइन के अंदर कोटा का कंट्रीब्यूशन इज वेरी स्मॉल ना. बट उनके बिजनेस मॉडल्स में क्या लिमिटेशंस थी? वाज इट द फैक्ट दैट दे कुडंट गेट आउट ऑफ कोटा? क्योंकि फैमिली ओन्ड बिजनेस था बेसिकली उस शहर के अंदर. उन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टीज खरीद ली, हॉस्टल्स खरीद लिए, सबके साथ एग्रीमेंट्स कर लिए. तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि सारा अच्छा बच्चा यही है. तो उनकी टॉप लाइन्स कहीं से भी आए, हमेशा कोटा से ही दिखाते थे. बच्चों को हमेशा फोमो रहता था कि लाइन्स कोटा से आ रही. बट जब से ऑनलाइन आया, डिजिटल आया, तो बच्चों को भी अवेयरनेस बढ़ गई है ओवरऑल कि नहीं यार कोटा जाने की जरूरत नहीं है, घर के पास वही पढ़ाई होती है जो वहाँ होती है. फिर PW आया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो इट वाज मोर अबाउट दोज फैमिलीज क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट बिल्डअप हो गई थी. दे ओन द लैंड्स, दे ओन द प्लेस. तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है वहाँ के रेंटल्स ही नहीं निकलेंगे, उनके लिए मीनिंगफुल ही नहीं होगा, बाहर जाके उनका वो अड्डा नहीं बनता. उनके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल सेंटर्स वही होंगे. तो उन्होंने इस चीज को पुश किया. So what is the split between offline and online right now for you? 52% online, 48% offline. Okay, so it's kind of neck and neck now, right? Neck and neck, but मतलब ऑनलाइन ज्यादा तेज भाग रहा है वो. ये बोल रहा है. Tell us about the IPO structure. What made you choose the OFS and the fresh issue split that you have done? Total issue size का 10% is offer for sale, 10-11% is offer for sale, 88-89% is fresh issue. That is fundamentally money will come into the company. इनफैक्ट हम लोग साइज काटनी थी, सबसे पहले ऑफिस ही काटा. पहले 720 था, वो आप शायद वही वाला पड़े हो गए. U380 हो गया, उसको उन्होंने हाफ कर दिया ऑफिस को. नन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स आर सेलिंग, तो वो 10% नीट करना था स्टार्टिंग में, उसके लिए वो OFS रखा हुआ था. फिर काटने में अलाउड नहीं होता क्या था, तो फिर उसके बाद 50% उसको काट. फ्रेश इशू हमने नहीं टच किया. जितना प्राइमरी कैपिटल हमने फाइल किया था पहले उतना ही रेज हो रहा है. लाइक OFS को हमने 50%, almost 50% स्लैश कर दिया. The capital that you're raising, most of it is going to go in your offline expansion, or you've also mentioned acquisitions. What is going to be the key area where the capital is going to be spent? See, to fund my future expansion, I need not to raise capital. I'm already sitting on a large treasury. Already 2,500 crore रुपए तो हमारी treasury में ही है. So why did you then need this additional capital? That's a comfort capital. 10% तो करना ही पड़ेगा ना पैट size. No, I'm saying why would you not choose to then raise from the private market? वही हम लोग बता रहे थे कि पब्लिक तो हम लोग जाना ही चाहते थे. तो रीजन यही है कि हम लोग ने बहुत ब्यूटीफुल कुछ बना रखा है, तो इसको अच्छे से चलाते हैं, पब्लिक मार्केट पे ले जाते हैं. कंपनी हाइपर ग्रोथ फेज में, इस टाइम पे पब्लिक मार्केट पे ले जाते हैं, सबके ग्रोथ कराते हैं यार, साथ में सबके अच्छा होगा, वरना लास्ट में टेपर हो जाएगा. You want to go public basically when you're at your peak. Right. Okay, one question on operations and presence. What is your reach and what is your distribution and what is your market share right now in terms of geographies within India, and how do you plan to expand it? See, fundamentally अगर आप distribution देखेंगे तो
I am very strong in Hindi heartland. English is a language. We have launched 11 Indic languages: Marathi, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam. Like ये सारे एग्जाम्स कैटेगरीज हम ऐड कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेजेस कैटेगरी। IIT नीट का मेरा मार्केट शेयर क्या है, तो मैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, MP इनको पकड़ता हूँ जो डोमिनेंट स्टेट है। यहाँ मेरा 25 से 30% मार्केट शेयर, विच इज गुड। बट इसके बाद मेरी कौन सी स्टेट्स रह गई जहाँ मेरा मार्केट शेयर अभी अच्छा नहीं है और जहाँ डैम बहुत बड़ा है? Which was the one? Have you identified? आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, लेस देन 5% मार्केट शेयर भी हमारा वहाँ पर है। तो वहाँ पे तो बहुत हेडरूम है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो 6 करोड़ टेस्ट टेकर्स हैं इंडिया में। हम कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? 7% ऑफ दैट ऑडियंस। 93% आपको ऑडियंस साफ दिख रहा है जो पढ़ा सकते हैं। दूसरा जो लार्ज मार्केट हम देखेंगे 9, 10, 11, 12 में बोर्ड्स में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 5 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं इंडिया में। हमें लगता है CBSE बोर्ड बड़ा बोर्ड है। यूपी अलोन हैज 1 करोड़ किड्स इन ग्रेड 9, 10, 11, 12। वो यूपी में हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे हैं। महाराष्ट्र में 72 लाख किड्स 9, 10, 11, 12। इसका हम 0.5% भी नहीं पढ़ा है। Online is something that you're so keen about, and online से ही आपने शुरू किया है. Then why so much emphasis on offline? Choice of mode of learning is lies with the student. बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन सूट नहीं करता है। क्यों? डिसिप्लिन के इशूज आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आंखों पे स्ट्रेन आता है। 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा है उसको टीचर चाहिए, उसको दैट गिव्स हिम अ कंफर्ट, मतलब टू वियर अ यूनिफॉर्म, बी डिसिप्लिन, टू गो टू अ सेंटर। तो अल्टीमेटली आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई कैन क्रिएट अ ग्रेट वैल्यू फॉर द स्टूडेंट। मोड ऑफ लर्निंग तो मतलब स्टूडेंट की चॉइस है ना। So you said only 7% is your market share across online, offline of this entire. 7% of offline market share. Okay. Online में I am the market. Okay. I am the market because average of the next two players are not even 10% of ours. How do you have a combined kind of online and offline? Because like you said, you have to be present across all platforms, right? And give a overall picture of what your market share is. The learning market share तो अगर हम पूरा इंडिया के लर्नर स्पेस देखेंगे तो 30 करोड़ बच्चे हैं। मैं 45 लाख स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो 1.5% हुआ। बिल्कुल जो मेरा एडजेसेंट एड्रेसेबल मार्केट है वो है 12 करोड़ बच्चों का। इन 12 करोड़ बच्चों से मैंने सिर्फ अभी 4% पेनिट्रेट किया है। So there's a huge opportunity there. Both online and offline are compounding slowly for next 10 years. इंडिया में लास्ट ईयर 2.5 करोड़ किड्स वर बॉर्न। ये बच्चे जो है मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास स्टार्टर में ही बॉर्न हुए हैं, लेकिन कौन पढ़ाएगा उनको? हम ही पढ़ाएंगे आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन और दैट ट्रांसलेट्स इनटू गेट वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन आप 4,000 का कोर्स बेच नहीं सकते हो, लेकिन वो बच्चे ही बच्चों को रेफर करते हैं कि यार एक अमेजिंग चीज है यार, मेरे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो रहा है, तू भी ले ले भाई इसको। लेकिन दैट्स हाउ द एंटायर बिजनेस इज बिल्ट। What is the sense you're getting as you go into the public market in terms of, I mean, I think last time also had asked, it's a very personality driven platform. If you look at it, from my lens, how do you kind of diversify and make it into sort of an institution? And what's the vision there? तो मैं ये बता रहा था कि अभी क्या है ना, वो हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा पेपर नहीं। 2 डेटा पॉइंट बताता हूँ कि 45 लाख बच्चे, 42 लाख बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, इनमें से किसी भी पेड बैच के अंदर मैं नहीं पढ़ाता। उसका हाँ ठीक है, ऑफकोर्स हो सकता है ये है कि मैं ब्रांड हूँ, मेरी वजह से बच्चे आते हैं। उसका भी आंसर ये है, पब्लिक डेटा है। आप गूगल SEO, यूट्यूब SEO कहीं भी टाइप करना, अलग पांडे, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राफ मिलेगा SEO का मेरा। फिर आप लिखना फिजिक्स वाला, मेरी लाइन एकदम फ्लैट होकर नीचे चली जाएगी फिजिक्स वाले के ऊपर। फिर आप लिखना PW, फिर वो और ऊपर हो जाएगी। तो इट्स PW ब्रांड, देन फिजिक्स वाला ब्रांड। मेरी ब्रांड बहुत नीचे हो चुकी है आज। मतलब PW ब्रांड इज 100x। हाँ, मतलब 100-200x होगा, मतलब मेरी लाइन फ्लैट हो जाएगी इतना। वो हम लोगों ने किया पर्पसफुली। And how are you thinking about AI in the education space? तो हमने 3 AI के बहुत मार्की प्रोडक्ट निकाले जो कि बच्चे बहुत यूज करते हैं। पहला AI गुरु था जो बच्चों के डाउट सॉल्विंग का प्लेटफॉर्म बनाया। 4 को डाउट्स बच्चों के हर साल सॉल्व कर रहा है AI गुरु। अब वो स्टूडेंट कंपेनियन बनता जा रहा है, बच्चों से इमोशनल वेलबींग, अपने स्ट्रेस, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये हमने बिल्कुल फ्री रखा है बिकॉज वी वांट maximum students to use it to generate more data, and we want to utilize that data to improve it further. Like, because it's a cycle, right? You have more users, more data, more improvements, that keeps you ahead in the curve from competition. Like, तो हमने बोला कि यार इसको ना बिल्कुल एकदम गार्ड रेल्स में बनाएंगे और it should not क्रॉस द लाइन और उस तरह से, मतलब कोई भी गलत आंसर ना दे, अकेडमिकली भी करेक्ट हो और हर तरह से करेक्ट हो। It became very boring, लेकिन उसका एंगेजमेंट ही नहीं आया। देन बिकॉज इट हैज टू बी एंगेजिंग इन नेचर ऑल्सो। तो एक देयर इज अ
there's a big layer of subject matter experts जो कि सारे के सारे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स को सैम्पल बेसिस पे टेस्ट करते रहती है. डाउनवर्ड्स जितना स्टूडेंट कर रहा है वो तो हम पूरा सैम्पल बेसिस पे चेक करते हैं कि मतलब व्हाई स्टूडेंट इज गिविंग मी थम्स डाउन, लाइक यू नो. और फिर दैट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट कि हाउ डू आई इंप्रूव माय आंसर. तो इसके लिए एक पूरा वेल डिजाइन ऑइल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्लो हमने बनाया. एंड करंटली माय स्टेम्प एक्यूरेसी लाइक नो साइंस स्पेशली ग्रेड 11-12 के साइंस और मैथ्स के जो it is better than Gemini, it is better than ChatGPTs of the world. उसके बाद में हमने AI के अंदर हमारा स्मॉल SLM लॉन्च किया आर्यभट्टा के नाम से. उसमें 7 करोड़ 7 बिलियन पैरामीटर्स पे उसको हमने ट्रेन किया. SLM कैन रन विदाउट इंटरनेट. उसकी जो एक्यूरेसी है, अगर आज IIT मेंस का पेपर होता है, दैट इज मोस्ट एक्यूरेट मॉडल करंटली अवेलेबल. और ये हमने पूरा खुद का बनाया, लाइक बिल्कुल ओपन सोर्स मॉडल को फाइन ट्यून करके, ट्वीक करके. इनफैक्ट NASSCOM has awarded us for this, and this is going to a top AI conference. लेकिन जो वर्ल्ड की जो top AI conference है उसके अंदर आर्यभट्टा जा रहा है. लेकिन my AI team is representing. But are you also doing any tie-ups with OpenAI? Okay. Microsoft Research के साथ में हमारा deep partnership है, as well as Google के साथ में भी है. So we have early access of their research as well. How big is your tech team? 600 people, and just the AI pod has 100 engineers, and that development center is in Bangalore. Okay. And finally, what is your global presence and plan? Very small fraction of the percentage. वहाँ भी हम Indian diaspora ही बढ़ा रहे हैं. We are a fairly domestic company. We want to teach Bharat in upcoming years. Like Alak and Prateek said, India's education market is vast and still underserved. PhysicsWallah's rise captures that hunger for affordable learning, regional content, and hybrid models that reach beyond metros. The opportunity ahead is massive, from offline expansion to AI-driven teaching. And yet, the market seems unconvinced for now. Tepid IPO subscriptions and flat grey market queues suggest that investors are pausing to test whether this edtech story can turn scale into sustainable profit. We will keep tracking how this one plays out right here on The Morning Brief. This episode was produced by me and Indranil Bhattacharjee, sound designed by Amrit Reggie. A new episode of The Morning Brief drops every Tuesday, Thursday and Friday, wherever you get your podcasts. Also, don't miss our new show, Corner Office Conversation, where we talk to the most interesting business and thought leaders from India and the world. Stay tuned.